showing their reaction. Some are not showing. Okay, if you have not done, bete, and those who have done, I appreciate all those who have done. They are ready for the next one, because I will solve 1 or 2 questions for you, and then I will definitely give homework to you. And when I will give you homework, then I will see your videos. Through video, I'll just see कि आप लोग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे. Okay, so I'm going to start it from sum number 2. Let me share you my screen first. Okay, my dear student, hope you can see my book. It's part number 1. We have all done. Use the remainder theorem to find the remainder when. This is the polynomial and the divisor is this one. This is the polynomial, divisor is this one. Polynomial, divisor is this one. I will repeat for you. First polynomial, this polynomial, sum number 1 polynomial is a cubic polynomial. Why it is called cubic polynomial? The reason is highest degree is 3 and the divisor is x minus 2. It means this is linear polynomial. This is linear polynomial or degree having degree 1. Similarly, in all the sums you will find linear. The divisor is linear. X raised to the power 1, here x raised to the power 1, x raised to the power 1, x raised to the power 1, x raised to the power 1. In all these you can find this one. Okay, these we have done. Now I'm quitting to this one. अब मैं इस पर अगर आपके कोई रिमार्क्स हैं तो जरा प्लीज आप मुझे दिखा दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 2 मैं सॉल्व करूंगा और रिमेनिंग मैं आपको दे दूंगा. प्रॉबेबली मैं आपके कहने पर क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दूंगा या कोई जो आप कहेंगे, बट मुझे आपके रिमार्क्स रिएक्शंस चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट केयरफुली, लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली. इफ आई विल रीड फॉर यू, बेटा आई विल रीड फॉर यू. इफ x plus 2 is a factor of 3x square minus 4kx minus 4k square. It means this is polynomial, this is your polynomial, this is your dividend, this is your dividend, and this is your divisor. Mean the question is already according to the question, according to the statement, वो ये कह रहा है कि ये पहले ही से factor है. When we say it is a factor, actually we are saying when we say it is a factor, it means the remainder is 0. The remainder is 0. What to do? Then find the values of k. K की क्या value होगी? You can see value और bracket में है values. Mean it mean जब ऐसी condition develop होती है तो इसका मतलब है ये value एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं. एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी वैल्यूज हो सकती हैं. इसीलिए इसमें लिखा हुआ है वैल्यूज. और इसके नीचे एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के. जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इसका मतलब है के की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और यहां एक से ज्यादा वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू, more than one value you can find here. So let's move to this statement and I am shifting to now. Oh, Scheiße. Sum number 2, it's page number 109 and exercise you are familiar, it's 5.2, 5.3. Sum number 2. If x plus 2 is a factor, when we say factors, factor है ये पहले ही से 3x square minus 4kx minus 4k square.
find the values, find the values. ये एक और मकसद था कि आपको जरा एक बार फिर इसका रिमाइंडर दे दूं. फाइंड द वैल्यूज, यहां एक से ज्यादा वैल्यूज के एक ही हमें मिलेंगी. ठीक है. व्हेन वी से x प्लस 2 इज अ फैक्टर, इट मींस कल आपको याद हो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बताया था कि उसकी लॉगरिथम में अगर उसकी वैल्यू जीरो भी आ जाती है, इक्वालिटी में जीरो भी आ जाता है तब भी ठीक है. अगर उसका रिमाइंडर जीरो भी आ जाता है तब भी ठीक है. और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं भी आता तो वो नॉन जीरो कहलाता है. तो वो नॉन जीरो कहलाता है. नॉन जीरो जो है वो फैक्टर नहीं होता, जीरो जो है वो फैक्टर होता है उसका. ओके, लेट्स प्रूव इट. हम इसे सॉल्व करके देखते हैं. जैसे हमारे पास था अभी जो वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस 4k x माइनस 4k स्क्वायर. ओके, आपके पास फैक्टर क्या है? since x plus 2 is a factor, since x plus 2 is a factor of polynomial x, अगर x plus 2 इस वाली पोलिनोमियल का फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो therefore रिमेंबर ये दो डॉट और एक डॉट, यहां सिंस मैंने कहा है, यहां therefore रिमाइंडर क्या होगा? जीरो होगा. अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा. लेट्स प्रूव. हम इसे सॉल्व करते हैं. कैसे? अच्छा, हमारे पास फैक्टर उन्होंने दे दिया x p ऑफ x. इसका मतलब है कि p ऑफ x का क्या आना चाहिए? इसका फैक्टर अगर ये है तो p को x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगी? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2. x की जगह हमने 2 पुट करना है. हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2. तो लेट्स पुट. हम इसे पुट करके देखते हैं क्या आता है. 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर. 2 स्क्वायर. ओ, ये माइनस है, ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 है. 4 के एज इट इज लिखेंगे क्योंकि k की वैल्यू तो हमने डिराइव करनी है और x की वैल्यू -2. हेलो, k हम एज इट इज लिख लेंगे. ओके, देखिएगा 2 का हम स्क्वायर लेंगे, 2 2s are 4. इस माइनस की वजह से ऊपर वैल्यू जो है इवन नंबर है तो 2 4 आ जाएगा, -4 नहीं रहे. 2 2s are 4 and 4 3s are 12, तो प्लस 12 आ जाएगा. दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम माइनस माइनस प्लस. 4 2s are 8k एंड माइनस 4k स्क्वायर. हमारे पास वो एक्सप्रेशन जो था, वो पॉलिनोमियल जो था, वो कुछ इस फॉर्म में आ गया. वो एक्सप्रेशन या वो पॉलिनोमियल जो था वो इस फॉर्म में आ गया है. अब यहां से दो बातें हैं, और ये चूंकि रिमाइंडर इसका 0 के इक्वल आ रहा है, इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है, तो बच्चों याद रखिएगा अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. हम या तो कॉमन ले लें इसमें से, और अगर कॉमन नहीं लेते तो हम डिवाइड कर दें. मतलब हमारे पास पहली टर्म आ रही है 12 जो कि कांस्टेंट है, फिर 8k हमारे पास एक मिडिल टर्म है, और 4k स्क्वायर हमारे पास एक फर्स्ट टर्म आती है. अगर आपको याद हो, आपने पिछले भी क्वेश्चंस किए थे फैक्टर्स वाले, फैक्टराइजेशन जिसमें आपने बनाई थी, तो उसमें आपने ये किया था. ये सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज है. ये फर्स्ट टर्म हम बनाती होती हैं और ये मिडिल टर्म है और ये कांस्टेंट इस तरफ है. लेकिन अगर इस हालत में भी रहेगा तो कोई मसला नहीं है, आप यहां भी इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर कुछ कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कर सकते हैं. मुझे जो नजर आ रहा है हम डिवाइड भी कर सकते हैं 4 पे, और इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं. तो वी कैन टेक कॉमन ले लेते हैं. इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 4. तो 4 हमने कॉमन ले लिया. 4 कॉमन लिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया? 4 3s are 12 प्लस 4 2s are 8 and 4 1s are 4. so k is we have in hand is equal to 0. मैं क्यों इसे 0 के इक्वल लिख रहा हूं? क्योंकि पहले इसे मेरे क्वेश्चन में गिवन है इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है.
और मैंने बताया अगर ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या है, 0। यही मैंने लिखा है, फैक्टर 0 आ रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 0 के इक्वल आ रहा है। अब 4 तो हमारा 0 के इक्वल हो गया, 4 तो खत्म हो गया, 4 इज इक्वल टू 0, तो ये 4 खत्म हो गया। हमारे पास ये जो वैल्यू रिमाइंडर आया है, मैं इस रिमाइंडर वाली वैल्यू को कुछ इस तरह लिखता हूं, इसको यहां से रेस करके मैं इसे इस तरह लिखता हूं। ओके, 3k 3 प्लस 2k माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये भी 0 के इक्वल है, क्योंकि दोनों के लिए रिमाइंडर जो है वो 0 है, 0 ही के इक्वल आ रहे हैं। चलें यहां से मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। क्या ब्रेक करें मिडिल टर्म को, हमारे पास प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2k ही आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आना चाहिए जो इसकी प्रोडक्ट बन रही है। ठीक है, 3 हमारे पास आना चाहिए। ओके, 3 प्लस 3k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा 3 1 3, 3 1 3, हमारे पास 3 आ रहा है, प्रोडक्ट 3 आ रही है, यही प्रोडक्ट थी इसकी, ये 3 हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है, और प्लस 3 में से माइनस के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2k आ रहा है। ठीक कर रहे हैं। ओके, यहां से कॉमन ले लें, ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन, 1 प्लस के। सिमिलरली यहां से हमारे पास माइनस कुछ, यहां कॉमन क्या आ रहा है, के है दोनों में, तो के कॉमन आ गया, के, यस शाबाश बेटा, के कॉमन आ गया, और माइनस कॉमन ले ले और ये वैल्यूज पास होगी, 1 प्लस, वेरी गुड शाबाश बेटा। अब देखिएगा ये आपकी वैल्यूज सिमिलर आ गई। आप यहां से एक कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस के, और दूसरी आ गई 3 माइनस के, हमारे पास ये आ गई, और ये दोनों किसके आ रहे हैं, 0 के इक्वल, क्योंकि इसका रिमाइंडर, ये फैक्टर है तो इसलिए इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा। अब आपके पास पहला जो फैक्टर आ रहा है 1 प्लस के, वो भी 0 के इक्वल है, 1 प्लस के 0 के इक्वल आ रहा है, तो आप इसको के को 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 उधर जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -1। वेरी गुड शाबाश बेटा, के की वैल्यू आपके पास डिराइव होगी, माइनस के आ गई। और सिमिलरली दूसरी वैल्यू क्या आपके पास, 3 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, के को दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वालिटी से, तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 3। हमारे पास के की 2 वैल्यू डिराइव हमने कर ली, के की 2 वैल्यूज हमने डिराइव कर ली, ये सॉल्व हो गया, के की 2 वैल्यूज डिराइव कर ली। अगर हमें किसी तरह का, अगर हम चेक करना चाहें, अगर सपोज अगर ये क्लियर है तो बेटा मैं इसको रेस कर दूं, आई एम गोइंग टू रेज दिस पार्ट, मैं इस पार्ट को रेस कर रहा हूं, ठीक है, यहां से सिर्फ इतना रेस करके जी, ओके बेटा, जब आप कहेंगे मैं इसको रिपीट कर दूंगा। यही एक ऐसी चीज है जो मैं आपको समझा दूंगा तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्डअप हो जाएंगे। ओके, के की वैल्यू हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, पॉलिनोमियल क्या थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 4k x माइनस 4k स्क्वायर। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, बस इतना ही डिराइव ही करनी थी, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेक श्योर हो रहा हूं कि k की वैल्यू, अगर तो k पुट करने से हमारे पास 0 आ जाता है तो रिमाइंडर ठीक है, हमने करेक्ट फाइंड किया है। मैं दोनों भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, लेकिन पहले एक वैल्यू पुट करके देखता हूं। 3x की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, -2, अगर आपको याद हो तो। 4k की वैल्यू आपने क्या सपोज की है पहले के लिए, -1, x -4, और पहली वाली वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, -1 हमने पुट कर लिया। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 2, 4 3 12, ये हमारे पास 12 आ गया। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, नो सर प्रॉब्लम। ये मिडिल टर्म में जो x है तो उसमें हम -2 पुट नहीं कर रहे। थैंक यू बेटे, थैंक यू। ओके, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस प्लस 4 2 8, और x की वैल्यू k -1, एंड x की वैल्यू आपने पुट करनी थी -2। ओके, 4 2 8, माइनस प्लस, एंड प्लस माइनस, ये माइनस आ गया आपके पास, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, -1 स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और ये वैल्यू आ जाएगी 4 1 4 -4।
और अब आपके पास ये एक पॉजिटिव वैल्यू है 12 एज इट इज, -8 एंड -4, -12 कैंसल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो हमने के की -1 वैल्यू डिराइव की है वो हमारी करेक्ट वैल्यू है, द वैल्यू डिराइव्ड। अगर आपको समझ आई है तो मुझे प्लीज बताइएगा, और अगर किसी का प्रॉब्लम है, वो जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट है कि आपको जिसको प्रॉब्लम हुई है वो मुझे बताइएगा, ताकि फिर मैं इसको वहां से करूं। और आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, प्लीज प्लीज, लिटिल फास्ट। हेलो, ऑल क्लियर? हेलो, Yes, sir. हेलो, ओके बेटा, फाइन। सिमिलरली अगर आप 3 पुट करके देखेंगे तो 3 से भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि शुरू में आपसे कह दिया गया था कि x + 2 इज अ फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। ये फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल का, और ये पॉलिनोमियल कौन सी है? फिर गौर से देखिएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ रही है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल विद हाईएस्ट डिग्री 2 है। मतलब ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया आपने। कोई क्वेश्चन आप लोगों की, मुझे तो नहीं आ रहा कि आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं। मैं फिर भी देखता हूं आपके कुछ रिमार्क्स, अगर कुछ रिमार्क्स। इट्स क्लियर, राइट, थैंक यू। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट में आप एक बार फिर आपको बुक की तरफ लेके जा रहा हूं, देखिएगा। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। अगेन आपको बता दिया गया है कि x - 1 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और आप अपने दिल में पढ़ सकते हैं इस पॉलिनोमियल को, x³ - kx² + 11x - 6। ये इसका फैक्टर है। जब ये फैक्टर है इट मीन इसका रिमाइंडर 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k की 2 वैल्यूज नहीं मिलेंगी, अब ये एक ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहां पहले से बता दिया गया वैल्यू ऑफ के सिर्फ एक वैल्यू। यहां हमारे पास था वैल्यूज ऑफ के, इसीलिए मैं इसको बार बार शो कर रहा था। कुछ बच्चे यहां क्वेश्चन कर रहे हैं, एक वैल्यू, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके फाइन। मैं इसे सॉल्व नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी चलें, मैं आपके लिए जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आपके पास पॉलिनोमियल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पॉलिनोमियल आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है x³ - kx² + 11x - 6, और इसका फैक्टर क्या है? इसका डिवाइजर क्या है? इस डिविडेंड का डिवाइजर है x - 1, इसका डिवाइजर है, और हमने इस डिवाइजर को लेके k की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम k x की वैल्यू पुट कर देंगे। यू नो दैट k x की वैल्यू अब क्या आ रही है? -1 है, तो क्या आएगी? +1 आएगी। आपको याद है ना? जी वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो हम लिख सकते हैं k की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 पुट कर दीजिए, 1³ - k, 1² + 11, 1 - 6। मेरे साथ रहिएगा प्लीज। और आप जानते हैं कि ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने कुछ स्टेप एग्जाम्प्ट कर दिए हैं, जस्ट इसको जल्दी कर रहा हूं। सिंस फैक्टर है, अगर ये x - 1 फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? देयरफॉर रिमाइंडर आएगा इसका 0। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड बेटा। 1 का क्यूब 1 - k, 1² of 1 is 1, 1 1 1 जा 1, k is a k -1, प्लस 11 1 जा 11 -6। तो आपके पास कुछ इस तरह वैल्यू आ रही है, ये -1 k + 11 - 6, 11 + 1, 11 + 1 12, 12 - 6, 6 - k is equal to +6, क्योंकि ये 11 इसमें ऐड हो गया 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो रह गया 6 रह गया। तो ये वैल्यू इस तरह आ रही है। अब k की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? जी k की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? -6 वैल्यू आ रही है, ठीक है। k की वैल्यू -6 आ रही है जी। -k + 11 - 6, 11 12, 6 सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 आ गया, और k इज इक्वल टू +6 ऐसे होगा। ये इसको मैं और डिटेल दे देता हूँ। -k को जब हम इक्वालिटी से +6, जब ये इक्वालिटी से इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा k इज इक्वल टू 6 आ गया।
तो k की वैल्यू हमारे पास +6 आ गई। अब इस k को यहाँ पुट करके देखेंगे तो ये रिमाइंडर 0 के इक्वल है। इसको पुट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ k डिराइव करना था। वो तो मैं आपको फर्दर बता रहा हूं कि ये फैक्टर है, पहले से बता दिया गया कि ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका रिमाइंडर 0 है, तो फिर हम अगर k की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अभी यहाँ जो आपको निकाल रहे थे, अभी हम यहाँ पे, मैं यहीं पे पुट करके देख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। 1 माइनस k की वैल्यू क्या आ रही है? 6 प्लस 11 माइनस 6। अब ये +11 एंड +1 कितना हो जाएगा? 12, और -6 एंड -6 -12 कैंसिल और इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला ये जो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। आई होप आप इसे समझ चुके हुए हैं। आई होप आप इसे समझ चुके हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो माइक ऑन करके भी मुझे बता सकता है प्लीज। हाँ, आपकी चैट बता रही है क्लियर। यस सर क्लियर। फाइन 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 ओके बेटा। नाउ लुक एट योर बुक प्लीज। मैं एक बार फिर जी प्लीज। जी बेटा। सर हमने जब k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो हमने उसको फर्दर सॉल्व करना है कि खाली वैल्यू नहीं, फाइंड जरूरत करनी नहीं है? जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से वो तो बता दिया हुआ ना कि इज अ फैक्टर। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो पहले से बता दिया कि इज अ फैक्टर। जब वो फैक्टर है तो इसका मतलब है वो रिमाइंडर उसका 0 है। वो तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि आप उसे, मतलब आप मेक श्योर हो गए हैं। अब मैंने उसकी वैल्यू डिराइव कर ली है, तो मैं मेक श्योर हो गया हूं कि मैंने जो वैल्यूज डिराइव की वो बिल्कुल ठीक आ रही है। आई होप इट इज क्लियर। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके फाइन। ओके, अब मैं दोबारा बुक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको वर्बल बताने की कोशिश करूंगा। लुक एट दिस क्वेश्चन। आई होप मेरा ये पेज आपको नजर आ रहा है। आई होप मेरा पेज आपको नजर आ रहा है। कोई एक रिमार्क्स दे दे। हेलो। Yes, sir. Yes, ओके sir. फाइन। ओके बेटा, नाउ विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिविजन डिटरमिन वेदर। आपने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। जो लॉन्ग डिवीजन मैंने आपको याद है कल करवाई थी, बिगनिंग पे मैंने कहा था अगर 8 4 पर 2 पे डिवाइड हो जाए या 9 2 पे डिवाइड हो जाए तो लॉन्ग डिवीजन की थी। अभी हमने फिर इसी मेथड को फैक्टर थ्योरम को करना है। हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। वो जो लॉन्ग डिवीजन आपको, चले मैं थोड़ा, अगर किसी को भूल गई है तो मैं उसको थोड़ा सा रिमाइंडर के तौर पर दे देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन में ये आ गया कि आप इधर कुछ वैल्यू लिखते हैं और इसको लॉन्ग डिवीजन करते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट करके यहाँ डिवाइड करेंगे। तो ये लॉन्ग डिवीजन नहीं हमने करनी। ठीक है, हम वापस उसी जगह चलते हैं जहां मैं बुक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके बेटे, लुक, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर। आपके पास दो फैक्टर्स गिवन है, एक x-2 एक x-3 है। आपने बताना है r इक्वल टू 2 पुट करेंगे और फिर इस, अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मीन अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर ये फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर ये फैक्टर नहीं है। सेकंड, x-3 के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सिमिलरली x-2 x+3 x-4, ये 3 फैक्टर्स गिवन है। 3 उन्होंने दिए हैं, ये नहीं कहा ये फैक्टर्स हैं, ये गिवन है। ये फैक्टर एक मतलब यू कैन से एक रैंडम फैक्टर्स दिए हैं, और ये कहा है कि क्या ये इस क्यू, अच्छा क्यूब से कंफ्यूज नहीं होना, ये उसी पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, इसी पॉलिनोमियल की x³ + 2x² - 5x - 6। ये इसी पॉलिनोमियल की जो डिविडेंड है, इसी पॉलिनोमियल की बात की जा रही है। इसको qx लिख दिया या px लिख दिया, कोई मसला नहीं है। आपने इन तीनों में से देखना है कि ये तीनों फैक्टर्स हैं या एक है या दो है। और सिमिलरली आपने हर एक वैल्यू के लिए, जैसे आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k, इसमें भी आप k फाइंड करेंगे, लेकिन पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। लेट मी सी योर ओके सर ठीक है बेटा। मैं ये इसलिए पढ़ता हूं कि अगर किसी का मसला हो तो फिर मैं आगे जाने से पहले इसको सॉल्व कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बेटी माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, kx³ + 4xk + 3x - 4। आपने बताना है इसका फैक्टर ये है या नहीं है फैक्टर, इसी तरह आपने सॉल्व करना है। और सिमिलरली ये सारे ही इससे रिलेटेड हैं, ये सब इसी से रिलेटेड हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो तब आपको समझ आएगी। लास्ट में हम चले जाते हैं, लास्ट में पहले क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉलिनोमियल गिवन है x³ + lx² + mx + 24। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए, हम जिस एक्सप्रेशन को पढ़ रहे हैं वो पॉलिनोमियल कौन सा है, वो पॉलिनोमियल कौन सा फैक्टर है, और वो पॉलिनोमियल है भी है या नहीं है।
इनकी वैल्यूज जो है पॉजिटिव है, ये चैप्टर 4 में मैंने आपको सिखा दिया था कि पॉजिटिव इनके पावर्स हैं तो पॉलिनोमियल, ये अभी सारे ही पॉलिनोमियल्स हैं, गिवन पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। तो इसको फैक्टर को हैज अ फैक्टर ऑफ 4, ये इसका फैक्टर है। जब इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, जब हम इसे इससे डिवाइड करते हैं तो फिर फाइंड द वैल्यू। तो आपने जब इसको इससे सॉल्व करके देखना है, जब आप सॉल्व करेंगे फिर आप एल और एम की उसी तरह वैल्यू डिराइव करेंगे, क्योंकि फाइनली आपके पास कुछ एक्सप्रेशन आएगा जहां एल और एम रिमाइंडर रहेंगे, और जब आप उन एल और एम को सॉल्व करेंगे तो तब यू विल कम टू नो, देन आपको समझ आएगी कि इनके एल और एम की वैल्यू क्या आ रही है। राफिया आई थिंक क्लियर, दानियाल क्लियर, राफे क्लियर, सारा क्लियर, ओके दानियाल कह रहे हैं। अच्छा बेटे, अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है, सारा डिपेंड करता है आपकी ऑनेस्टी पर, ठीक है। आपको जो पहला आप स्कूल लगने पर जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा वो मतलब विश पीस बी विद यू, और सेकंड जो मेरा क्वेश्चन होगा वो आपके होमवर्क से कंसर्न करेगा। और अगर तो आपकी फ्लुएंट राइटिंग होगी, पेन की राइटिंग पर सॉल्व कर रहे होंगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि एक ही वक्त में किया गया है, और अगर उसमें थोड़ा सा चेंज नजर आएगा राइटिंग में, मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वी आर नॉट चिल्ड्रन, हम बच्चे नहीं है कि हमें पता नहीं चलता। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये डेली बेसिस पे होमवर्क किया है, क्योंकि बच्चे यूजुअली इस तरह करते हैं। अभी मैं एक स्टूडेंट का नाम भी ले सकता हूं, बल्कि उसके कजन आए थे और उन्होंने मुझे स्पेशली आगे कहा जी ये होमवर्क, और लेट आए थे, तो इसका मतलब था वो किया गया था, रिमेनिंग जो भी रिमेनिंग होमवर्क रह गया था। फॉर गॉड सेक बेटा, यहाँ आपको ऑनेस्टी दिखानी है, शो करनी है, प्रूव करनी है। हमारी एफर्ट और आपकी एफर्ट इक्वल होनी चाहिए, लॉगरिथमिक एफर्ट होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम एफर्ट होनी चाहिए, तभी जाके हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो 100% होंगे, और मोर देन 100% भी हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड, बट इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज यू आर